What are you like really thinking before going for the auction? What are the preps? ये एक ऐसा स्पोर्ट है जो कि आप हाथ पकड़ के खेलते हो आपके Right. साथी का। Yes. तो आपको आपके साथी के ऊपर ज़्यादा भरोसा होना चाहिए और उसने वो काम करना चाहिए जो आपको करना है। पहले 2 सीज़न हमारी टीम ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया एंड वी आर एट द बॉटम ऑफ द टेबल एंड दैट्स व्हेन आई सेड कि नहीं बॉस, टीम को ऊपर लेके आना है। So I will do whatever I have to do to get the team up. So you don't have to watch a movie for 3 hours or or watch a game for maybe 2.5 hours. In 40 minutes you've had your fun, you had your laughter, and you've got all entertainment and thrill and action. तो ये बॉयज़ को आप पिक करते हैं या कोई भी आके आपकी एकेडमी में एडमिशन लेके? वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और कोच का काम वही होता है कि आइडेंटिफाई सच प्लेयर्स। आज के एपिसोड में हमारे गेस्ट हैं कैलाश कांडपाल, जो कबड्डी प्रीमियर लीग की एक बेहतरीन टीम पुनेरी पल्टन के सीईओ हैं। इनके नेतृत्व ने टीम में नई ऊंचाइयां ही नहीं छुई, पर ये युवा खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहन देते हैं। तो आइए इस एपिसोड में जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में, टीम की सक्सेस के बारे में और उनके रास्ते में आए चैलेंजेस के बारे में। सो कैलाश, आई वांटेड टू नो हाउ डिड दिस जर्नी स्टार्टेड and how did you get into sports like Puneri Paltan, Kabaddi? How did you join this team? So I was working with Kotak Securities. Okay. And in Kotak, we also have a division which looks after sports. Oh. Okay, and this is more for corporate sports. So when I say division, there's a small group of employees who look into various employee engagement program, and sports is one of the theme in which. So you have corporate football, you have corporate cricket, chess, and badminton, where corporates like Kotak and large corporate houses like be it a TCS, Infosys, or other banks like HDFC, all come and participate. Now these are weekend corporate games. Okay, which happens in mostly in a city like Bombay. It may happen in a Goregaon Sports Complex, where you book the venue. So the event organizer will book the venue and will invite corporates to participate in various games. Okay. So I was an avid cricket lover, which in India most of us are. Yes. और मैंने वहाँ से फिर अपना कोटक में ट्राई किया कि मैं कोटक के लिए क्रिकेट वीकेंड्स पे खेलूं। Okay. बट आई वाज रिजेक्टेड बाय द कोटक क्रिकेट टीम, बिकॉज काफ़ी अच्छे प्लेयर्स होते हैं हमारे कोटक टीम में, काफ़ी बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं और मैं रिजेक्ट हो गया था। तो फिर रिजेक्ट होने के बाद आई डिड नॉट लूज होप। मैं बोला कि ठीक है, आई विल इफ आई डोंट गेट टू प्ले आई कैन एटलीस्ट हेल्प देम ऑर्गेनाइज। Right. तो मैं ऑर्गेनाइजेशन आई स्टार्टेड हेल्पिंग देम विद ऑर्गेनाइजिंग वेरियस गेम्स। तो हमारी एक कोर टीम थी जिसमें ऑस्कर गोम्स मेरे जो कलीग थे, एक्स कलीग थे, वो थे, और मेरे एक्स बॉस जयमित, वो एक कोर कमिटी हमारा था जहाँ पे हम वेरियस गेम्स ऑर्गेनाइज करते थे, एंड क्रिकेट वाज वन ऑफ देम। Okay. And when Kotak completed 25 years, we did a cricket tournament across more than 200 cities of India. And that's where the entire thing for Kabaddi started. And when the Kotak family took the team in the personal capacity, they were looking out for somebody who can handle this team. And that's when Jaimit suggested my name, that Kailash कर लेगा ये काम। तो that's how it fell on my lap. So मेरा डे जॉब था कोटक सिक्योरिटीज मार्केटिंग, Oh. एंड दिस वाज इन इवनिंग। तो शाम को सब काम खत्म होने के बाद मैं बैठता था एजेंसी के साथ, चलो आज लोगो बनाते हैं, आज ये टी शर्ट का कलर कॉम्बिनेशन क्या होगा। तो आप देखोगे तो पहले साल का जो कलर कॉम्बिनेशन है वो मोर ऑफ रेड कलर का है, जो कि हमने कोटक से इंस्पायर होके किया था, नॉट फ्रॉम पुनेरी पल्टन। एंड देन स्लोली वी चेंज द एंटायर थिंग, एंड नाउ आप देखोगे अब लगता है कि ये पुनेरी टीम है। Right. So that's how my journey started in Kabaddi. Okay.
So, what is the thing which goes behind, starting means like you said that you to sit and discuss and the other things. So there is a very interesting thing कि आप auction करते हो to make a team. Right. So ये क्या process होता है and what are you like really thinking before going for the auction? What are the preps? तो हाँ, सो जो ऑक्शन में हम जाते हैं, ऑक्शन का प्रिपरेशन 2 या 3 महीने पहले होता है. सो आप आजकल तो बहुत सारे स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस हो गए हैं और वहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो रहे हैं. तो हमारे पास भी ऐसी एक टीम है जहाँ पे हम जो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से जो डेटा एनालिटिक्स स्टूडेंट्स होते हैं जिनको डेटा एनालिटिक्स का शौक होता है, तो हम उनको अपने कॉन्ट्रैक्ट्स देते हैं और उनको बोलते हैं कि वेरियस कबड्डी टूर्नामेंट्स जो होते हैं पूरे इंडिया में, तो वहाँ पे डेटा आप जरा एक्यूमुलेट करो, कलेक्ट करो कि हर एक प्लेयर के बारे में आपके पास रिकॉर्ड हो. तो ये जो सिस्टम है ये इतना इवॉल्व सिस्टम नहीं है कबड्डी में, जो कि क्रिकेट में आपके पास पूरा डेटा रहता है प्लेयर का, या आप कोई और गेम्स देख लो, फुटबॉल जो यूरोपियन फुटबॉल होता है उसमें आपको पूरे प्लेयर्स के डेटा मिलेंगे, हिस्ट्री मिलेंगे, क्लब हिस्ट्री मिलेगी. बट कबड्डी क्योंकि एक हमारे गांव का खेल है, जो कि एक छोटे लेवल पे खेला जाता है, इतना डेटा नहीं रहता है. और जो बच्चे खेलते हैं वो भी गांव से आते हैं, तो उनको इतना समझ नहीं होता है डेटा का, तो वो अपना रिकॉर्ड नहीं रखते हैं. तो ये बच्चे जाते हैं जो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट से आते हैं, वो कलेक्ट करते हैं डेटा. फिर हम एक शीट बनाते हैं, एक्सेल शीट, जहाँ पे हम अपना पूरा फिर स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि कौन सा प्लेयर किस पोजीशन में खेल सकता है. ओके, हमारे कुछ एग्जिस्टिंग प्लेयर्स होते हैं जो हम सोचते हैं कि अगर ये इसका लास्ट ईयर का ये परफॉर्मेंस रहा तो इस साल भी क्या परफॉर्मेंस दे सकता है. Right. जैसे कि आप स्टॉक मार्केट में करते हो, कि पास्ट परफॉर्मेंस में क्या है, एंड बेस्ड ऑन दैट यू डू योर रिसर्च एंड टेक अ पंट कि ये किधर क्या करेगा. ओके, वेदर यू टेक अ पंट वे यू डू अ रिसर्च, वो तो बाद में जब वो चलता है तब पता चलता है कि आपने क्या किया कि और कैसा आपने रिसर्च किया उसके ऊपर. तो उस प्लेयर के ऊपर वैसे रिसर्च होता है. हम देखते हैं उसकी लाइफ स्पैन में वो क्या कैसे कितने साल खेल सकता है, क्या उसकी उम्र है, तो बहुत सारा चीज़ जाता है, और वो कैसे पीक परफॉर्मेंस में है. और सबसे एक और बहुत ही हम जो देखते हैं कि ये प्लेयर हमारे कल्चर में फिट होगा कि नहीं. जो हमारे पुनेरी पल्टन का एक कल्चर है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. सो प्लेयर कैसा भी हो, बट वो हमारे कल्चर में फिट होगा कि नहीं. इज ही अ हम्बल पर्सन, इज ही अ पर्सन हु इज़ रेडी टू प्ले फॉर द टीम. क्योंकि ये एक ऐसा स्पोर्ट है जो कि आप हाथ पकड़ के खेलते हो आपके साथी का. तो आपको आपके साथी के ऊपर ज़्यादा भरोसा होना चाहिए, और उसने वो काम करना चाहिए जो आपको करना है. तो आप अगर आपने कभी कबड्डी देखा होगा तो 2 जन हाथ पकड़ के खेलते हैं, तो जब वो पुल करता है मीन्स आपको एक वो इशारा आ गया कि अब वो कुछ करने वाला है, तो आपको उसका पूरा सपोर्ट देना चाहिए उस वक्त. तो यही एक ऐसा खेल है. बाकी सब खेल में आप देखो, या तो आप क्रिकेट या आप फुटबॉल देखो कि बॉल गेंद आपके पास है और आप गोल की तरफ भाग रहे हो, आप गोल कर सकते हो. बट यहाँ पे आपको आपके साथी के ऊपर डिपेंडेंट है कि आप अगर उस टैकल पे उसको पकड़ने जाओगे तो वो आपका कितना सपोर्ट करता है, उस पर निर्भर करता है कि आप सक्सेस होगी कि नहीं. तो जैसे कि एक कहावत है कि है ना, वापरते हैं किसी को तब पता चलता है, मतलब हाँ. जब आप, तो फिर आपके कई बार आपने जो भी अपना एनालाइज किया होगा कि ये हमारे कल्चर में फिट होगा नहीं, वो कई बार गलत भी पड़ा होगा. बहुत बार गलत होता है, बहुत बार गलत होता है, कई बार नहीं, बहुत बार गलत होता है. और मेरे बॉस तो हमेशा बोलते हैं कि तू जो प्लेयर लेता है वो तो कभी भी परफॉर्म नहीं करता है. नहीं, ऐसा नहीं है. आपके लास्ट सीजन में आपका बहुत अच्छा प्लेयर थे शार्दुल. हाँ, वो सब क्रेडिट कोच को जाता है. सो वो कोच को जाता है क्रेडिट कि उसने शार्दुल जैसे प्लेयर को फाइंड किया, उसको ग्रूम किया और इतना अच्छा खिलाया, तो वो क्रेडिट कोच का है. सो आई विल नॉट टेक दैट क्रेडिट फॉर दैट, बिकॉज द कोच आइडेंटिफाइड द प्लेयर. एंड वो कोच ने बोला कि मुझे बोला गया था, कोच ने ये ऑक्शन के पहले बोला, सर मुझे ये प्लेयर दे दो, मैं आपको ट्रॉफी जिता के दूंगा. तो फिर इस साल शार्दुल क्यों नहीं थे टीम में? देखो क्या होता है कि ऑक्शन के बहुत सारे डायनामिक्स होते हैं. तो आपको एक पर्स दिया जाता है. ऐसा है कि उस पर्स के अंदर ही उतना ही लिमिटेड अमाउंट में जो आपका है उसमें आपको टीम बनानी होती है, और मिनिमम 18 प्लेयर्स आपको उस
प्राइस में खरीदने होते हैं। तो इस बार शादलू हमारे उस पर्स में नहीं बैठ रहा था, इस वजह से हमें उसको लेट गो करना पड़ा। और वो ऑक्शन में तो फिर राइट, उसने बिकॉज लास्ट ईयर पुनेरी पल्टन वॉज द विनर टीम। यस और तो एक प्लेयर के ऊपर इतना डिपेंडेंट रहता है टीम, बिकॉज लास्ट ईयर आपके पास शार्दुल थे और इस बार आपके पास शार्दुल नहीं थे। आपके टॉप प्लेयर असलम, ही गॉट इंजर्ड और उसका हमने थोड़ा सा प्रभाव देखा गेम पे। तो कुछ एक दो प्लेयर्स के ऊपर पूरी टीम का भविष्य निर्भर रहता है एक गेम में। नहीं, ऐसा नहीं होता है। और आप देखोगे तो हर पोजीशन इम्पोर्टेंट होती है कोई भी स्पोर्ट में। हर एक पोजीशन इम्पोर्टेंट होती है और कुछ प्लेयर्स आउटलायर्स होते हैं जो कि पूरा कैरी ऑन कर लेते हैं। ओके, पूरी टीम को कैरी ऑन कर लेते हैं। शादलू उनमें से एक है, असलम उनमें से एक है। और उनके प्रेजेंस से क्या होता है कि पूरा टीम का जो एटमॉस्फेयर रहता है वो एकदम पॉजिटिव और अपलिफ्ट हो जाती है टीम। राइट, तो उनका मोराल वो बूस्ट कर लेते हैं। और ये कुछ नाम जो आपने लिए, ये ऐसे प्लेयर्स हैं, दे नेवर गिव अप। एडवर्सिटी में ही ये प्लेयर्स शाइन करते हैं। तो आप इनको टफ सिचुएशंस देंगे तो ये शाइन करेंगे। तो वो हर एक प्लेयर की वो क्षमता नहीं होती, हर एक प्लेयर की कैपेबिलिटीज़ हैं और कुछ भी कमियां भी होती है। तो वो इस बार हमने देखा कि हमारे प्लेयर्स उस वहाँ पे खड़े नहीं उतर पाए। और जो लेवल चाहिए था असलम और शादलू का वैक्यूम फिल करने के लिए, वो वहाँ पे खड़े उतर नहीं पाए। दो दे आर वेरी गुड प्लेयर्स एंड आई एम श्योर दे विल मेक अ कम बैक, बट इस बार नहीं कर No, we are sure that everyone keeps on, improving with every match and with experiences and with, as you said, your guidance and most importantly the coach. तो कोच का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है? बिकॉज हमने कई बार हिस्ट्री में देखा है कि जब एक प्लेयर को फेम मिलने लगता है, नाम मिलने लगता है, तो कई बार वो अपने फेम में उसके पीछे जो गाइडेंस है, जो डायरेक्शंस है, उसको भूल जाते हैं। तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है कि जहाँ पे आपको लगा हो कि मीन्स नो, द कोच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन बिल्डिंग द होल टीम? Yes, definitely coach is the very important person in building. In any sport, coach becomes a very important person. Okay, coach का जो दायित्व होता है वो प्लेयर्स जो चुन के लाते हैं उनसे बेस्ट परफॉर्मेंस लेना और एक टीम का जो हैप्पी एनवायरनमेंट है वो क्रिएट करना। सी, एक लेवल के बाद आप देखोगे तो प्लेयर में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। फ़र्क होता है कि उनके मेंटल स्ट्रेंथ का। ओके, आप कोई भी गेम ले लीजिए, वेदर आप टेनिस ले लीजिए जहाँ पे आप जोकोविच, राफा नडाल और एल्कराज इनको ले लीजिए। ओके, या आप फुटबॉल में ले लीजिए रोनाल्डो, मेसी, या आप क्रिकेट में ले लीजिए विराट और धोनी। ये सब प्लेयर्स के जो मेंटल, जो उनका जो स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ रहता है एंड टू राइज टू बिग ओकेजन्स, ओके, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और कोच का काम वही होता है कि आइडेंटिफाई सच प्लेयर्स, ओके, कि कौन क्या मेरे टीम में बैठ सकता है। अब आपको तो पूरे सारे 11 के 11 विराट तो मिलेंगे नहीं, या 11 के 11 आपको मेसी तो मिलेंगे नहीं। तो फिर आपको जो 7-8 प्लेयर जो लेने हैं वो अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया से आएंगे। तो उनकी मेंटालिटी कैसे होती है, किसका बैकग्राउंड क्या होता है, तो वो सारा अंडरस्टैंडिंग करके फिर कोच अपना टीम बिठाता है। और फिर उसके बाद फिर जब वो प्रैक्टिस में जाते हैं तो जो प्रैक्टिस में उनको पता चलती है कि क्या है उनकी स्ट्रेंथ्स है, क्या वीकनेसेस है, और उस हिसाब से फिर उनको कराते हैं वो गेम। और गेम जिस दिन होता है उस दिन कोच का मेन जो स्किल होता है उस दिन पता चलता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि वो प्लेयर खेल पा रहा है कि नहीं और उस प्लेयर को चेंज करना है क्या, क्योंकि उसको पता है कि उसकी कैपेसिटी क्या है। अब प्लेयर को तो लगेगा कि वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है, बट ऐसा नहीं होता है। he is not performing to his level and the coach identifies him, and then the substitution or things like that happens, especially in a game like kabaddi. Okay, yeah, because the coach is watching you from outside. Yes, so and the coach knows you during from the practice sessions also कि आपकी क्या capability है और इस situation में आप क्या कर सकते हो, और अगर आप कर रहे हो तो very good, अगर नहीं कर पा रहे हो तो क्यों नहीं कर पा रहे हो। So he can see and and then
कबड्डी में एक वो अच्छा है कि आप कितने आप 4 या 5 सब्स्टिट्यूट्स कर सकते हो. कैलाश, मेरा क्वेश्चन था कि आप लास्ट 10 साल से पुनेरी पल्टन के साथ ही हैं, तो दिस इज़ फॉर द लव ऑफ कबड्डी और कि एक अटैचमेंट हो गया, एक लगाव हो गया, बिकॉज ऑब्वियसली इट हैज़ ग्रोन इन फ्रंट ऑफ यू एंड इट इज़ टेकिंग अ शेप विच इज़ वेरी मच अप्रिशिएटेड बाय एवरीवन. और सी मैंने जब कबड्डी चालू किया, मुझे जब ये मिला तो मैंने बोला कि चलो एटलीस्ट आई एम गेटिंग टू डू समथिंग इन स्पोर्ट्स विच आई लव. ओके, Okay, so that's how I started. And kabaddi is, and when I started, doing, small things for kabaddi, that's when I realized ki, what a amazing game it is. And this is the only game from our own country. कंट्री राइट. ओके एंड इट्स सच एन अमेजिंग गेम जहाँ पे आप टैकल भी कर रहे हो, डिफेंस भी कर रहे हो, अटैक भी कर रहे हो, एंड द गाइज आर सो स्ट्रॉन्ग, मस्कुलर, एंड एजिलिटी कितना है, क्या है. तो तब मुझे वो थोड़े न्यूआंसेस गेम के समझे, एंड दैट्स व्हेन आई रियली फेल इन लव विद कबड्डी. देन आई सेड कि ओके, एंड ऑफकोर्स पहले 2 सीज़न हमारी टीम ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया एंड वी आर एट द बॉटम ऑफ द टेबल. एंड दैट्स व्हेन आई सेड कि नहीं बॉस, टीम को ऊपर लेके आना है, सो आई विल डू वॉट एवर आई हैव टू डू टू गेट द टीम अप. और उसके बाद जो हमने काम किया है मेरे और मेरी टीम ने, यू कैन सी दैट ईयर आफ्टर ईयर वी हैव ओनली बीन इम्प्रूविंग. या राइट. एंड एज यू सेड कि हमारे देश का गेम है, तो आपको तो ये पता ही होगा, लेकिन क्रिकेट के बाद जो इंडिया के मतलब ज़्यादा देखा जाता है इस कबड्डी. मतलब देर आर क्लासेस विच गो टॉक्स अबाउट फुटबॉल और टेनिस, बट कबड्डी हैज़ नाउ अचीव, थैंक्स टू पीपल लाइक यू हु हैव गिवन इट सो मच टाइम एंड लव, कि कबड्डी को अप्रिशिएट किया जाता है. मतलब मैं आज किसी से बात कर रही थी, सम फीमेल, एंड आई वॉज टॉकिंग टू हर कि नहीं वो एक गेस्ट हैं हमारे, वो आएंगे ऐसा करके, एंड शी इज लाइक, मैं बोली यू नो अबाउट दिस, बोलती या आई नो, आई वॉच कबड्डी. आई वाज लाइक ओह ओके, सो people are loving it. Yeah, it's thanks to Anand Mahindra who started this vision, and Star Sports who took the initiative of showing it on their channels. And after that, the way they have packaged the sport, and it's completely loved by family. Okay, and if you see the audiences, they cut across all classes. So they have male, female, and children also. And kabaddi is a very small, quick game. It's a 40-minute game. Okay, so you can have complete entertainment in 40 minutes. So it becomes like, in the evening, when you are back, from, nowadays both husband, wife work. So when you come back and you are at home and you are with your children, you can switch on the TV and, watch a game of kabaddi for 40 minutes and then you're done. So you don't have to watch a movie for 3 hours or, or watch a game for, maybe 2.5 hours. In 40 minutes, you've had your fun, you had your laughter, and you've got all entertainment and thrill and action. So आप कबड्डी में देखो कि हमने थर्ड रेड इंट्रोड्यूस किया है, प्रो कबड्डी ने थर्ड रेड इंट्रोड्यूस किया है, विच मेक्स इट एक्साइटिंग. सो एवरी आफ्टर एवरी 40-45 seconds there will be some excitement. There is a super tackle where when you are in a situation of जहाँ पे 2 या 3 डिफेंडर हो तो आपको super tackle की अपॉर्चुनिटी है. So all those small things which Pro Kabaddi has introduced or reintroduced with the help of the federation to make it interesting for viewers is, I think, helping the sport. No, it is nice to see, again, the Bharat ka game, and the younger people, the kids who did not know, now have recognition for kabaddi. जैसे अब के टाइम में जहाँ PS5 is so popular and kids doesn't know Kho-Kho. Yeah, yes. So, by the way, there's a Kho-Kho league also. Okay. Yeah, there's a Kho-Kho league also. I don't know how it is doing now. Okay. But they have done 2 seasons of Kho-Kho. Oh, is it? Yeah. Nice information. Yes. So, Yuva Paltan is again a thing started by Puneri Paltan. Yeah. So, how did it come up? So, हमने देखा कि टैलेंट बहुत है इंडिया में. ओके, लेकिन उनका जो सोच है वो एकदम प्रोफेशनल स्पोर्ट को जो चाहिए वैसा नहीं था. ओके, सो द काइंड ऑफ द प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड, द काइंड ऑफ फिटनेस इज रिक्वायर्ड, द काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इज रिक्वायर्ड, और जो डाइट चाहिए उनके साथ, जो एक एथलीट को चाहिए टू बी अ वर्ल्ड क्लास एथलीट,
हमने देखा कि वो गैप है, कबड्डी में वो गैप है। और वो गैप इसलिए है कि एथलीट्स के पास उतना साधन नहीं है, ओके, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये दोनों नहीं था। सो वी सेड कि अगर ये दो गैप अगर हम फिल कर सकते हैं देन वी कैन गेट वेरी गुड टैलेंट। और हमने वही किया, हमने एक स्मॉल सेटअप से चालू किया, ओके, विच वी हैव इन थाने इटसेल्फ, okay, in Dadoji Kondwe Stadium. We have our kabaddi academy there. Okay. So it's an academy. It's an academy. Yeah, we have a small space there which we've rented out for kabaddi. And हमने क्या किया है कि थाने में ही हमने 2-3 bungalows लिए हैं. And these boys are from different parts of India. Okay, very small towns, very humble boys. Okay, and they come here, they stay. Okay, हमने हमारे डाइटिशियन से उनका 4 times का मील्स, हमारा स्ट्रेंथ एंड ट्रेनिंग कंडीशनर है, वो मैस्योर है, फिजियो है, ओके, सो ऑल दैट वी मेड अवेलेबल फॉर द बॉयज हियर इटसेल्फ इन आवर एकेडमी। तो ये बॉयज को आप पिक करते हैं या कोई भी आके आपकी एकेडमी में एडमिशन लेके? बोथ वेज, वी आर ओपन फॉर बोथ वेज। वी हैव आवर मेंटर एंड वी हैव आवर कोचेस who do the selection. All boys are free to come and give a trial here. Okay, हमारा कोई restriction नहीं है. Of course, the age limit should be between 16 to 20. Okay, 16-17 इसके लिए कि because we don't want smaller kids to come and then being here away from parents and all that. And 20 is the right peak age for kabaddi. And if the boy is good, he can start at a young age of 16 to 17 and 1 year practice करने के बाद वो प्रोफेशनल लीग खेल सकते हैं। सो हमने वो किया है कि 16 और 20 एनीबडी कैन कम एंड गिव देयर ट्रायल्स। इफ दे आर गुड द कोचेस विल कीप देम बैक इन द एकेडमी। ओके, तो ऐसी और एकेडमी है महाराष्ट्र में या इंडिया में? बहुत सारी एकेडमीज हैं, बहुत सारे। अभी कहीं पेड एकेडमीज हैं वेयर यू कैन पे अ फीस। ओके, तो बच्चे फीस दे के वहाँ पे ट्रेन हो सकते हैं। हमारा यूनिक कॉन्सेप्ट है, हमारे एकेडमी में जो आता है हम उनको एक स्मॉल टोकन अमाउंट ऑफ इंटर्नशिप या टोकन अमाउंट ऑफ remuneration देते हैं। Wow, this is a very good way of supporting. Yes, people would then step in because जो आप कह रहे हो कि जिनके पास सुविधा नहीं होती है, जिनके पास साधन नहीं है, तो उनके लिए एक थोड़ा अच्छा पुश है ये, कि ऐसा नहीं है, वी आर देयर होल्डिंग योर हैंड्स एंड यू कैन। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो पैसे जमा करते हैं और फिर अपना घर भेजते हैं, और आप अपना बहुतों के पास तो घर भी नहीं है। हमारे पास तो एक लड़का आया था जो कि लेबर वर्क करता था। सो ये दिहाड़ी जो बोलते हैं, जी, वैसे काम करता था। तो उसने सुना हमारे एकेडमी में, वो आया और उसने अच्छा ट्रायल्स दिया। उसके बाद हमने उसको 1-2 टूर्नामेंट्स खिलाए, देखे कि कैसे हैं। तो ही इज़ वेरी गुड। और फिर हमारे वहाँ रुका वो 1-1.5 साल तक हमारे एकेडमी में था। देन ही गॉट सिलेक्टेड बाय अनदर टीम। ओके, एंड ही इज़ ऑलवेज टॉकिंग गुड थिंग्स अबाउट पुनेरी पल्टन। ओह नाइस। आपके पूरे कबड्डी प्रीमियर लीग में आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? मेरा जिनका आपने ग्रोथ देखा है? या वैसे मेरा ऑल टाइम फेवरेट तो मंजीत चिल्लर है। ओके, बट जिसका ग्रोथ देखा है मैंने असलम का ग्रोथ देखा है। ओके, मेरे टीम के जो कैप्टन है असलम इनामदार। अच्छा, असलम इज फ्रॉम इंडिया, शादुल इज नॉट फ्रॉम। नो, शादुल इज फ्रॉम ईरान। असलम इनामदार इज फ्रॉम हियर, वासिन। ओके, क्लोज टू नासिक, इज फ्रॉम देयर। सो वहाँ का लड़का है। तो कबड्डी मतलब बाहर भी खेली जाती है, मतलब इट इज नॉट जस्ट अ इंडियन गेम? नो, इट इज प्लेड इन कोरिया, इट इज प्लेड इन पाकिस्तान, इट इज प्लेड इन केनिया, साउथ अफ्रीका। अफ्रीकन कंट्रीज तो बहुत खेलते हैं कबड्डी। ओह, इज इट? और अभी हमने एक एग्जीबिशन मैच ऑस्ट्रेलिया में किया था ड्यूरिंग द बॉर्डर गावस्कर बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच। हमने एक वहाँ पे भी एग्जीबिशन मैच किया था, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस। तो दीज आर एक्स रग्बी प्लेयर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडियन ऑल स्टार्स। हम एक टीम लेके गए थे वहाँ पे। तो ये ऐसे एग्जीबिशंस क्यों होते हैं? टू प्रमोट द स्पोर्ट। ओके, टू प्रमोट द स्पोर्ट सो दैट मोर एंड मोर पीपल प्ले। हमने एक बार वर्ल्ड कप भी किया था, जहाँ पे इंडिया में ही किया था वर्ल्ड कप, एंड मोर देन 12 countries participated. The countries from Europe also, Latin American
also Okay. had So, participated. does this World Cup happens every year or No, it doesn't happen every year. you just Okay. organized it We once? the federation organized it. Okay. It was shown on Star Sports. Okay. Yeah. पर मेरे को लगता है वो दिन दूर नहीं है जब हम वर्ल्ड कप देख सकते हैं कबड्डी का भी. वर्ल्ड कप तो देख सकते हैं, और फेडरेशन का तो ये है सपना कि हम इसको ओलंपिक्स में लेके जाएं. सो वी आर ऑल फ्रेंचाइजीज एंड द लीग एंड मशाल, हु आर द ओनर्स ऑफ द लीग, आर ऑल सपोर्टिंग कबड्डी सो दैट वी सी द पुश कमिंग इन ओलंपिक्स. ओके. आपका एज अ रोल सीईओ का रोल इज़ वेरी क्रिटिकल आई थिंक, क्योंकि आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है टू मेक द बेस्ट टीम. सो आपका क्या प्रोसेस जाता है, बिकॉज द कोच, द फिजियो, द मैनेजर, द अदर पीपल हु सीज द डाइट एंड न्यूट्रिशन, तो इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल विच, बिकॉज एज यू मतलब एक टीम से ही एक टीम बनती है. राइट. तो वो टीम बनाने में क्या प्रोसेस रहता है? जैसे कि मैंने कहा कि आजकल तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आ रहे हैं कॉलेजेस से. सो व्हाट वी डू इज़ वी हैव अ सेट ऑफ टीम मेंबर्स हु आर ऑन आवर रोल्स. ओके. और वो जाके सिलेक्ट करती हैं फिर. ओके. हमारे पास जैसा डेटा एनालिस्ट है. डेटा एनालिस्ट आज हमारे साथ 5 साल से है. ठीक है. फिर हम उसके नीचे फिर हम ट्री जैसा ग्रो करते हैं कि भाई अब तू बता कि और तेरी टीम में कौन कौन मेंबर्स आ सकते हैं, सो दैट वी हैव अ ग्रोथ चार्ट फॉर दोज मेंबर्स ऑल्सो अंडर द डेटा एनालिस्ट. ऐसे ही हमारे पास जो स्ट्रेंथ एंड ट्रेनिंग कंडीशनर है, वी ट्राई एंड सी कि उसका बैकग्राउंड क्या है, व्हाट इज़ हिज बैकग्राउंड फ्रॉम स्पोर्ट्स. इफ़ ही इज़ फ्रॉम स्पोर्ट्स देन व्हाट काइंड ऑफ स्पोर्ट्स डज ही डू. Does he do contact sport like rugby or football? Okay, because they are very close to, those injuries are very close to the injuries of kabaddi. Okay, and what is his experience with athletes? Then we have our physios. Okay, where we try and tie up with large hospitals like Kokilaben or Dhirubhai Ambani Hospital, or try to get the best physios for a team. And of course the coaches are there then, okay, who then help me find the right kind of players and the right kind of balance for the whole team. Okay. तो जैसे आपने बोला कि ये जो कोर टीम है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है. Right. और वो कोर टीम बनाने में आपका सबसे ज़्यादा वक्त जाता है और आपका सबसे ज़्यादा टाइम जाता है, और वो सबसे ज़्यादा एफर्ट, इमोशनल, फिजिकल एज वेल एज इंटेलिजेंट, ऑल 3 मिक्स टुगेदर. Right. For that kind of team. Nice. Kailash, thank you for coming on our podcast. I hope आप हमारा जो भी कॉन्वर्जेसन हुआ है आपके साथ, उससे लोगों को और पता चले इस गेम के बारे में. और जैसे कि आपने बताया कि देयर इज़ अ एकेडमी विच हेल्प्स देम इन एवरी मैनर, तो और बच्चे जो एक एस्पिरेशन रखते हैं, कुछ जो छोटे गांव में कहीं पे भी भारत के कोने में हैं और चाहते हैं कुछ करना, उनमें से कोई से देखे और ज़रूर अपना टैलेंट लेके आएंगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर. हाँ, अगर बच्चे देख रहे हैं या पेरेंट्स देख रहे हैं या किसी को भी अगर है कबड्डी में कुछ करना और अगर इस लीग में पार्टिसिपेट करना है, तो वो आ सकते हैं हमारे एकेडमी में. ओके, दे कैन फॉलो अस ऑन पुनेरी पल्टन एंड दे विल गेट ऑल देयर updates on where the academy is, how the academy is, and हम बच्चों का पूरा ख्याल रखते हैं. We want these kids to represent India. Of course पुनेरी पल्टन के लिए तो वो चैम्पियंस हैं ही, बट हमें चाहिए कि हमारे देश के लिए वो गोल्ड मेडल लाए. So that's the whole thing of starting this academy. Yes. Thank you so much for having me. Thank you. Thank you for watching the episode. आपके लिए ऐसे ही हम इंटरेस्टिंग टॉपिक और गेस्ट लाते रहेंगे. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.